Hello students, I am Gunwan Patel from Logic Institute and I am here with the next lecture of electrostatics, and today we will talk about the electrostatic potential of dipole. You know about the dipole. आप सब dipole के बारे में जानते ही हो. Dipole is a system of two unlike charges separated by the finite distance. ठीक है ना बच्चों? तो लास्ट लेक्चर में, कुछ प्रीवियस लेक्चर में पहले हमने डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था. तो आज हम डाइपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे. एक सिंपल सा है, देखिए. हियर दिस द डाइपोल, टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू विच इज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस 2a, and the center of this dipole is at origin. That's why the distance of plus q and minus q from the origin is a, and we have to find electrostatic potential of this dipole at point p, which is at distance r from the center. Okay, so we know about the potential of any point charge. So just revise. मान लो यहां पे कोई पॉइंट चार्ज होगा Q, और यहां से किसी पॉइंट पे P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. तो क्या करेंगे हम? वी नो अबाउट द फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू KQ बाय R, इन विच Q दैट इज द चार्ज एंड R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट. R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. मतलब किसी भी चार्ज का अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना होगा किसी भी डिस्टेंस पे, तो आपको वो चार्ज का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, एज वेल एज वो चार्ज का पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस पता होना चाहिए. अब यहां पे कैसे होगा? यहां पे दो चार्जेस है, माइनस क्यू प्लस क्यू. तो हमें पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो माइनस क्यू से जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो भी फाइंड करना पड़ेगा, प्लस क्यू से जो भी डिस्टेंस मिलेगा, जो भी पोटेंशियल मिलेगा पी पॉइंट पे वो भी हमें फाइंड करना होगा. So that means the potential at point P is the sum of potential due to positive charge as well as potential due to negative charge. ठीक है ना बच्चों? तो this is the one kind of overview of this theory. हमें कोई भी थियरी, कोई भी डेरिवेशन पढ़ने से पहले उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम से हमें एक वे बनाना पड़ेगा कि हम पर्टिकुलर फॉर्मूला तक कैसे पहुंच पाएंगे. तो हमें क्या करना होगा? माइनस क्यू से भी पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, प्लस क्यू से भी पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा. एंड वी नो अबाउट द पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू KQ बाय R, इन विच वी हैव टू नो अबाउट द चार्ज एज वेल एज डिस्टेंस. सो हियर द डिस्टेंस फ्रॉम द माइनस क्यू चार्ज इज, वी आर टेकिंग माइनस R माइनस, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज इज R प्लस. तो हमें सबसे पहले R माइनस R प्लस उसका कोई ना कोई रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट. इट्स वेरी सिंपल. ओके, हियर फ्रॉम दिस फिगर वी नो अबाउट द A that is in this direction. So let us consider. I will explain to you. See here, A, so which is in this direction. R plus, it is also in this direction, R plus, and the resultant vector is R. So like this is R. So from this figure, according to the law of summation of triangle, so that's law of summation of vectors, that is the triangle law, that is very simplest. So R is equals to R plus A. So from this we can make the formula of R plus, that is R minus A. Okay, very simplest. Here the angle between A as well as R plus is, that is theta. Here also angle between A and R is also theta. So here the magnitude of R plus is taken like this,
r plus square is equals to, very simple, r square plus a square minus 2ra cos theta. This formula you had learned in chapter 4 of 11th standard. That is the resultant vector of r, resultant vector of a and b. A plus b is equals to r. In that case, the magnitude of r is root of a square plus b square plus 2ab cos theta, in which theta is angle between a and b. Here angle between r and a is theta. That's why r square plus a square. Why minus? Because of it is r minus a. Very simplest. So this is r plus square equals to r square plus a square minus 2ra cos theta. Okay, now take r square as a common. If you take r square as a common, in that case the remaining terms which are inside the bracket is r square is taken common, so 1. अगर आप r square को common ले रहे हो, remember that, मान लो 2x plus 6, अगर आप 2 कॉमन ले रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? कोई भी टर्म अगर आप कॉमन लोगे तो वही टर्म से अंदर डिवाइड कर लो. मान लो मैंने 2 कॉमन ले लिया, दैट मीन्स 2x by 2 plus 6 by 2. So that means 2 कॉमन, दिस वन इज x plus 3. आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो. आपको पता है कि सर यहां पे हम 2 कॉमन लेंगे तो 6, 3 to the 6, that's why it is 3. लेकिन मान लो अगर ऐसा दिया होगा 2x plus 5 और आपको बोला जाए टेक 2 एज अ कॉमन, तब कैसे करोगे? आप बोलोगे सर यहां से तो 2 कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन अभी आप साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहे हो. दैट मीन्स यहां से भी हम 2 कॉमन ले सकते हो. अगर आपको 2 कॉमन लेना हो तो टेक 2 एज अ कॉमन एंड डिवाइड बाय 2 to all these terms. That means 2x by 2 plus 5 by 2. It's very simplest. So that means 2x plus 2.5. It's very simplest. तो यहां पे अगर हम r स्क्वायर को कॉमन ले रहे हो, दैट मीन्स r स्क्वायर कॉमन, r स्क्वायर को अगर r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा. a स्क्वायर को r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो जाएगा. यहां पे r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1r कैंसिल आउट. सो दैट मीन्स 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r. यू कैन टेक, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है ना बच्चों? ओके, नेक्स्ट. अगर हमने यहां पे कॉमन लिखा, दैट मीन्स r प्लस स्क्वायर और otherwise you can take r plus is equals to root of this term. Root of this term, it means r, and here the root of this term 1 plus a square by r square minus 2a cos theta divided by r whole raised to half. Root it means half power. यहां पे r square का हाफ पावर आप करोगे तो कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स r ओनली. नाउ टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट, बिकॉज हमें जो यहां पे फॉर्मूला डिराइव करना है, V is equals to potential V is equals to KQ by R. It means अगर आप प्लस Q चार्ज से यहां पे पोटेंशियल फाइंड करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, V plus is equal to KQ by R plus. So we required the value of 1 upon R plus. तो हम यहां पे 1 upon R plus का वैल्यू बनाएंगे. So take reciprocal. So 1 upon R plus is equals to 1 upon R. अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 upon R हो जाएगा, और ये पूरे टर्म का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वी नो दैट इफ x स्क्वायर और उसका रेसिप्रोकल होता है 1 upon x स्क्वायर, एंड दैट इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस x raised to -2. सिर्फ पावर को नेगेटिव बना लो. अगर पावर को नेगेटिव बनाओगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो यहां पे भी ऐसे ही होगा. ये हाफ पावर है, अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कुछ ऐसे होगा, 1 plus a square by r square minus 2a cos theta by r
होल रेस टू माइनस हाफ। ये सिंपल सा रेसिप्रोकल हो गया। अब रेसिप्रोकल होने के बाद कुछ टर्म्स को निग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? एकदम सिंपल सा है। हियर r इज मोर ग्रेटर देन a। ये जो r है उसका वैल्यू ये a जो हमने यहां पे सेपरेशन बताया है उससे बहुत ज्यादा होगा। अगर r का वैल्यू a से बहुत ज्यादा होगा, इन दैट केस इफ r इज मोर ग्रेटर देन a, इन दैट केस a square by then a square by r square is becomes very less। वो 1 से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। So it can be neglect, it is negligible, that's why so it is neglected, so it is neglected। एकदम सिंपल हो गया। That means 1 upon r plus is equals to 1 upon r। 1 ये तो निग्लेक्ट हो गया। अगर वो निग्लेक्ट हो गया तो हम उसको यहां पे नहीं लिखेंगे। रिमेनिंग टर्म इज 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। ओके बच्चों, एंड होल रेज टू माइनस r। ठीक है। और जब भी आप ऐसे कोई हाफ पावर या कोई भी पावर होगा उसको बाइनोमियल थ्योरम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो 1 upon r प्लस इज इक्वल टू लिखेंगे यहां पे here r is more greater than a, so the terms with higher power, the terms with higher power are neglected, टर्म्स विथ हायर पावर आर निग्लेक्टेड। अगर हम हायर पावर वाले टर्म्स निग्लेक्ट कर लेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स विल बी लाइक दिस। इट्स वेरी सिंपल। सो 1 upon r प्लस इज इक्वल्स टू 1 upon r इन ब्रैकेट 1। सिंपल सा लॉजिक है, आपको सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे यहां पे जो एक पावर है ना, और जो टर्म निग्लेक्ट करने के लिए हम सोच रहे हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। आप डायरेक्ट अगर आप बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन हमें सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ ये पावर से यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो ऑलरेडी हो जाएगा वैसे। सो 1 अगर हम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ से अगर यहां पे मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस, हाफ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। लाइक दिस, हाफ इंटू माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हाफ इंटू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। सो दैट्स व्हाई 1 upon r प्लस इज इक्वल्स टू 1 by r। 2 कैंसिल आउट, सो 1 प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। सिंपल सा है, ठीक है ना बच्चों। तो सिमिलरली हम डायरेक्ट लिख पाएंगे, सिमिलरली आप 1 upon r माइनस का वैल्यू भी लिख सकते हो। इट्स 1 upon r 1 प्लस, जैसे यहां पे r प्लस में प्लस आया तो r माइनस में हम माइनस लिखेंगे। a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। आप r माइनस को भी अलग से पूरा डिराइव कर सकते हो, लेकिन हमें उसको अलग से पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे हमने r 1 upon r प्लस का वैल्यू जैसे डिराइव किया उस पे से डायरेक्टली हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो पूरा वापस वही डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि यहां पे जैसे माइनस हो गया वहां पे ये प्लस वाला टर्म आएगा। जैसे लिख सकते हो, देख लो आप, जैसे मैंने यहां पे r प्लस का वैल्यू बनाया वैसे हम r माइनस का वैल्यू भी बना सकते हैं। देखो यहां से अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, दिस वन इज a, देखो दिस वन इज a, you can see that this one is r from this like this, and this one is r minus, so from this we can write r minus is equals to r plus a,
सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया, तो सारे टर्म पे जहां जहां माइनस था वहां पर हम प्लस लिखते जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस का क्या होगा, माइनस। तो हमें वापस पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट लिखेंगे। सो नाउ द पोटेंशियल at point P is V is equals to V plus potential due to positive charge plus potential due to negative charge, एकदम सिंपल सा है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू से डिस्टेंस है आर प्लस, तो फॉर्मूला बनेगा के क्यू बाई आर प्लस वी माइनस, चलो नेगेटिव से कितना डिस्टेंस है आर माइनस, सो वी कैन टेक माइनस के क्यू बाई आर माइनस, वेरी सिंपलेस्ट। चलो के क्यू कॉमन, के क्यू, टेक के क्यू एज अ कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स आर 1 upon r प्लस माइनस 1 upon r माइनस 1 upon r प्लस का वैल्यू ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है, 1 upon r माइनस का वैल्यू वो भी डिराइव किया हुआ है, दोनों का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे, सो वी विल गेट के क्यू, सी हियर 1 upon r प्लस इज 1 upon r in bracket, that is 1 plus a cos theta by r minus 1 upon r minus, that is 1 upon r 1 minus a cos theta by r, very simplest, solve out is equals to k q by r। अगर हम 1 upon r को कॉमन लेंगे, if we take 1 upon r as a common, so k q by r कॉमन हो गया, so remaining terms is 1 plus a cos theta divided by r minus 1 minus minus plus a cos theta divided by r, so here 1 minus 1 cancel out, a cos theta by r, a cos theta by r is what, 2 times a cos theta by r, so here kq by r and this becomes 2a cos theta, 2 times हो जाएगा ना, तो 2a cos theta by r, इट्स वेरी सिंपल। पूरा डेरिवेशन में सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स है और वो भी कुछ ज्यादा टफ वाले नहीं है, एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले हमने देखो r प्लस का एक फॉर्मूला बनाया, यहां से r प्लस का फॉर्मूला बनाने के बाद उसमें से r स्क्वायर को कॉमन लिया, r स्क्वायर को जैसे ही कॉमन लिया वैसे उसको रूट ले लिया, रूट लेने के बाद 1 upon r प्लस, हमें 1 upon r प्लस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो आप यहाँ पे 1 upon r प्लस का ही वैल्यू हमें पुट करना था, तो हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया, उसमें से जो टर्म्स को निग्लेक्ट करना था उसको कर लिया, फिर हाफ पावर था बाइनोमियल थ्योरम से उसको सिंप्लीफाई कर लिया, हायर पावर वाले टर्म्स को निग्लेक्ट कर लिया, सो हमें 1 upon r प्लस का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया, और सिमिलरली करके हमने 1 upon r माइनस का वैल्यू लिख लिया। फिर हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला था पोटेंशियल का, वो पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई किया, के क्यू कॉमन ले लिया, 1 upon r प्लस 1 upon r माइनस दोनों का वैल्यू हमने पुट कर लिया और सिंप्लीफाई किया, वी गॉट वेरी सिंपल फॉर्मूला, सो के हियर 2aq, see here 2a into q, 2aq that is dipole moment, so kp 2aq that is dipole moment, so kp cos theta divided by r square, रिजल्ट लिखेंगे because of p is equals to 2aq, so this is the standard formula of potential due to dipole। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे p तो वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ v तो स्केलर क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी पे स्केलर क्वांटिटी डिपेंड है तो ये तो वेक्टर होना चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह हम मैग्नीट्यूड में ले सकते हैं, अगर आप उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कुछ ऐसे करना होगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू, वेरी सिंपलेस्ट, हमें ये वेक्टर को ऐसे कुछ करना होगा जिससे हमें स्केलर क्वांटिटी मिले। किसी भी वेक्टर में से स्केलर क्वांटिटी डिराइव करना होगा तो हमें स्केलर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे भी सिंपल सा एक स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज v इज इक्वल्स टू k p डॉट r कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट, देखो ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा बताऊंगा, जैसे यही फॉर्मूला है
लेकिन हमने उसको एक और फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो कैसे, के बी कॉस थीटा, के पी डॉट आर, मतलब जैसे आपको पता है इफ आर इज इक्वल टू ए डॉट बी, सो वी कैन राइट लाइक दिस ए बी कॉस थीटा। पता है ना बच्चों? तो वैसे ही होगा यहां पे, जैसे पी डॉट आर कैप मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एज इट इज आर स्क्वायर था, एंड वी नो दैट आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड होगा 1, सो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला आ गया देखो। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली एंड दिस इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वही लिखेंगे, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है ना बच्चों? ये एक सिंपल सा डेरिवेशन है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन दिख रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ी, लेकिन अगर आप थोरोली जाओगे ना तो वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि ये सिंपल वाले फॉर्मूला हमने 11th में देखे ही थे, वही फॉर्मूला को रिवाइज करके वापस कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो सिंपल सा है, सिर्फ आपको इसको 2-3 बार रिपीट करना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है बच्चों? टेक इट कॉमन, ओके, इसको कॉपी कर लो। हम इसके और कुछ केसेस देखेंगे जिसमें एक्सिस पे, इक्वेटर पे क्या होगा वो भी देखेंगे। तो ये कॉपी कर लो सबसे पहले, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो अब इसके एक्सिस पे देखेंगे। ये टॉपिक आज डाइपोल का जो हम पढ़ रहे वो बहुत ज्यादा सिंपल है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केस 1, दैट इज on the axis of, or the point, the potential at a point, potential at a point on the axis, on the axis of dipole। अब एक्सिस पे दो केसेस हो सकते हैं। अगर मान लो ये डाइपोल है -q +q और हमारा पॉइंट यही डायरेक्शन में आते हैं, दैट इज एट पॉइंट P। सो P इज इन द डायरेक्शन ऑफ, द पॉइंट P इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना बच्चों? अगर ऐसा होगा, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस भी हम यहां से ही लेंगे, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर ऐसा होगा तो एंगल बिटवीन देम इज 0। सो इफ, यहां पे लिख सकते हैं, इफ थीटा इज 0, दैट इज पोटेंशियल V इज इक्वल टू kp cos 0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। cos 0 इज व्हाट? 1, सो इट बिकम्स kp by r स्क्वायर प्लस kp by r स्क्वायर। ये हो गया एक्सिस का ही एक केस। अगर एक्सिस पे यही पॉइंट जो P के डायरेक्शन में है वही उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब कैसे बनेगा? तो वो देखो एकदम सिंपल सा है वो भी। अगर ऐसा होगा तो लाइक दिस वी कैन राइट, ये हो गया डाइपोल, दिस वन इज -q +q, ये डायरेक्शन हो गया P का, और आपका पॉइंट यहां पे होगा, सो दैट इज एट डिस्टेंस r। एक्सिस पे ही दोनों सेम केस ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन ये P के डायरेक्शन में था, ये P के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसा होगा तो लिखेंगे इफ थीटा बिकम्स, दैट इज 180 डिग्री, 180 दैट इज पाई रेडियन, 180 डिग्री दैट इज पाई रेडियन। सो V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज kp cos pi by r square, cos pi is -1, so minus kp by r square। So on the axis the potential may be positive or negative, both have same magnitude। ठीक है ना बच्चों? तो ये हो गया एक्सिस का। अब इक्वेटर का कैसे होगा? केस नंबर 2, दैट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट on the equator,
अगर ऐसा होगा इक्वेटर, इट मीन्स देन theta becomes 90 degree, and in that case potential V is equals to Kp cos 90 by r square is equals to what? 0, because cos 90 is 0. तो आप इक्वेटर का या एक्सिस का दोनों का अलग अलग आप फाइंड कर सकते हो। अगर कोई एंगल दिया होगा तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, कॉपी डाउन दिस ऑल थियरी।